ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے، جس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ اجلاس کی صدارت پاکستان کے نائب صدر وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ اہم خطے کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں اور امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور دے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ترک اور مصری ہم منصب سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور برادر ملکوں نے خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعادہ کیا۔ علاقائی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے فریقین نے ایران کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا، آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم برادر مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو پوسٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، ایران کا یہ اقدام خوش آئند اور تعمیری ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جو اجتماعی کوششوں کو مزید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک اہم ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جس کے بعد یہ معاملہ عالمی خبروں کی زینت بن گیا۔ اسحاق ڈار نے اپنی ٹویٹ میں بتایا، ایران نے 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، جس کے تحت روزانہ 2 پاکستانی جہاز اس اہم بحری گزرگاہ سے روانہ ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی کے دوران خاص اہمیت کی حامل ہے۔ خبر شامل کریں گے، امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے لیکن خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ایرانی سفیر محمد باقر کا بیان، کہا، ایرانی مسلح افواج امریکی زمینی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو سخت سزا دے سکے۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ کا کہنا ہے، ایران پائیدار امن کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی مذاکرات میں ہٹ جانے کا معاملہ زیر بحث آنا چاہیے۔ فاطمہ مہاجرانی نے موقف واضح کر دیا کہ ایران نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن نقصان بہت اٹھایا۔ اعلیٰ قیادت سمیت سینکڑوں ایرانی حملوں میں شہید ہوئے، شہریوں کے گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری کر لی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران میں محدود زمینی کارروائی خصوصی دستے اور روایتی فوجی کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے، پینٹاگون ایران میں ہفتوں پر مشتمل زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ زمین فوج کی تعیناتی کی منظوری دیں گے یا نہیں، یہ ابھی واضح۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے، آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کیے ہیں، جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرا ہے۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ اس کے علاوہ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا ہے اور بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ہم انتقامی کارروائی کے دوران اب خطے میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے یونیورسٹیوں کے عملے، طلباء اور جامعات کے قریب رہنے والے عام شہریوں کو کہا وہ اپنی جانیں محفوظ رکھنے کے لیے ان تعلیمی اداروں سے کم از کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ رکھیں۔ پاسداران انقلاب نے یہ دھمکی تہران میں واقع ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کے رد عمل میں دی۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے جان بوجھ کر ایران کی کئی جامعات اور تحقیقی مراکز پر حملہ۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا دوران جنگ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، جو طیاروں اور ڈرونز کا سینکڑوں میل دور سے پتہ لگا سکتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے، E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को एक माह हो गया। ईरानी हलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। मुख्तलिफ ईरानी सूबों में किए गए हमलों में तबाह मकानात की तादाद 71,547 हो चुकी है। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 20,779 तजारती अमलाक को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में 31,562 रिहायशी और तजारती अमलाक अमरीकी और इसराइली हमलों में तबाह हुई। ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। एक शख्स ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। अमरीकी सेनेटर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। गजा में हजारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। ईरान में अब तक 2,000 शहरी मारे जा चुके हैं। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। मजीद कहा, ट्रंप झूठ बोलकर ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी टैक्स दहंदगान का पैसा जाया कर रहा है। ने एटमी हथियारों के आदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतालिका इदारे NPT से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का कहना है, वाज़े हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। इक़दाम का मकसद IEI के मुआयना कारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मजीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत जारी के लिए जारी इक़दामात के नफाज पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमती फ़ैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फराहम किया। उन्होंने कहा, तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके अदा की। अवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और तवानाई बहरान के पेश नज़र इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत हफ्ते दोपहर 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक मुकम्मल पाबंदियां नाफिजुल अमल रहेंगी। एलामी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तमाम मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियां बंद रहेंगी, जबकि शादी हॉल्स और तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज करने की हिदायत की गई। हुकाम का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में तवानाई के वसाइल पर दबाव कम करना और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है। इस दौरान हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखी जाएंगी ताकि मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान आमदोरफ्त को महदूद किया जा सके। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल करें और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर ट्रंप के खिलाफ नॉकिंग्स मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुजाहिरीन ने जंग रोकने के मुतालबात किए। न्यूयॉर्क में आलमी शहर याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नेरो ने अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद की। रॉबर्ट डी नेरो ने नॉकिंग्स डे तकरीब में खिताब करते हुए ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मली भगत के बगैर नहीं कर सकता। ट्रंप रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोका जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी अमरीका की 50 रियासतों में 3,200 एहतजाजी मुजाहिरे मुतवक्के हैं। मुजाहिरीन इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरों में अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान पर जंग मुसल्लत किए जाने के खिलाफ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भी अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरे किए गए। सदर पोर्ट पर खुसूसी जहाज MVH-MO लीडर की कामयाब बर्थिंग के साथ 35 यूनिट्स ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल किया गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार का कहना था, गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। खित्ते में कशीदगी से रिवायती शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से गवादर की अहमियत में इजाफा हुआ है। ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए मुफ्त स्टोरेज सहूलत और पोर्ट और फ्री जोन में आला इस्तेदाद के कंटेनर्स हैंडल करने की सलाहियत मौजूद है। गवादर पोर्ट ब्लू इकोनॉमी और इलाकाई तिजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा।
दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। इस्लामाबाद से लंदन की पहली परवाज रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरेट ने PIA की लंदन के लिए परवाज़ों की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरेट का कहना था, लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुश आइंद है। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम है। परवाज़ों की बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्कास है। सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली का कहना था, PIA और लंदन का कई दिहाइयों का साथ है। इस कदम से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक UAE में 70 बरतानवी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें 10 बरस तक सजाए कैद का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि गिरफ्तार अफराद पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से नुकसानात की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार अफराद में बरतानी सयाह, UAE में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल है। बाज़ गिरफ्तार अफराद को जमानत पर रिहाई दे दी गई है, ताहम उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं ताकि वो अमारात ना छोड़ सकें। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमाराती कानून के तहत बाज़ तस्वीर को वसूल करना भी जुर्म है। तस्वीर वसूल करने की सज़ा 10 बरस कैद और 2 लाख दिरहम जुर्माना हो सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान ने कहा, अफगानिस्तान बतौर हमसाया मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मसाइल को बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल किया जाए। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मौलवी अमीर खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक राबता किया। एलामी में कहा गया कि टेलीफोनिक राबते में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान मसाइल, इलाक़ाई सूरत हाल और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल के हवाले से अमीर खान का कहना है, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम भी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घरेलू चोरी में मुलव्वस गैंग समेत मुतादिद रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और माल मसरूक़ा बरामद हुआ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रजब अली से। जी रजब, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट है? खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला से पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घरेलू चोरी में मुलव्वस गैंग समेत मुतादिद रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और माल मसरूक़ा बरामद हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घरेलू चोरी में मुलव्वस गैंग को मुल्ज़िमान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रजब अली से। जी रजब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना बनीगाला पुलिस की जराए पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना बनीगाला पुलिस ने साबका मुकदमात में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जो कि चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़िमान के कब्जा से चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें घरेलू चोरी, नकाबजनी और नाजायज असला रखने के इल्जामात शामिल हैं। इन मुकदमात में थाना बनीगाला और थाना फलगराम में दर्ज केसेस शामिल हैं, जिन पर मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया रजब, आप हमें आगाह कर रहे थे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में हालिया इजाफे से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, उन्हें और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान ड्रेप के मुताबिक ज़रूरी अद्वियात बशमूल इंसुलिन और दीगर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान भी ऐसी किसी इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। ड्रिप का कहना है, ज़रूरी अद्वियात की फहरिस्त में शामिल अद्वियात की कीमतों में फार्मास्यूटिकल कंपनियां अज खुद इजाफा नहीं कर सकती और अथॉरिटी इस हवाले से कड़ी निगरानी कर रही है ताकि अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके।